Good morning, students. Hope you will be fine at your respective places. Last time we have started the term ecosystem, and in this topic, first video में हमने क्या पढ़ा? Simply that we have studied the definition of the ecosystem, and we have defined that ecosystem is simply an integrated system which results from the interaction between the biotic and abiotic components of an environment. Then we have what we will call as given the various types classification of this ecosystem, and those classifications they were mainly based on the size and nature of the ecosystem. Today what we are going to discuss the structure of the ecosystem, that is the composition of the ecosystem. ओडम हमारे पास है, वेल नोन बायोलॉजिस्ट, वेल नोन इकोलॉजिस्ट, उसने बात की ओडम ने हमने क्या बताया कि जो हमारे पास जो इकोसिस्टम है, उसने बात की इकोसिस्टम की, दैट इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट ने उसके नाम रखा बायोटिक कंपोनेंट, दूसरे को उसने नाम रखा एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट में अगर हम बात करते हैं, इसमें ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर लेंगे, इसमें ज़्यादातर हमारे पास नॉन लिविंग वर्ल्ड आता है. Now we will try to discuss this biotic component. Biotic component में जो हमने as the name indicates bio, it means the life. It mainly includes the living elements. It mainly includes the living organisms, and those living organisms have been classified into two different categories. And जो हम classification देते हैं on the basis of their nutritional relationships. We have got first one, autotrophic कंपोनेंट. दूसरा हमारे पास है हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट. अगर हम ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट की बात कर लेंगे, नाउ ट्राई दिस, इसमें हमारे पास आते हैं ग्रीन प्लांट्स, इसमें हमारे पास आते हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, इसमें हमारे पास आते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसमें हमारे पास आते हैं व्हाट वी कॉल एज अ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. अब हमें देखते हैं कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे आल्सो एक्ट एज द प्रोड्यूसर्स, बट दे फिक्स ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें कौन कौन से हमारे पास आते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमारे पास आयरन बैक्टीरिया आते हैं, इसमें हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आते हैं. अब व्हाट डिड दीज डू, व्हाट हैपन्स, इसमें क्या हो जाता है? ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट में क्या होता है? दीज ऑर्गेनिजम्स दे ट्रैप द radiant energy of the sun. They trap the radiant energy of the sun during the process of photosynthesis, and they convert this solar energy into the chemical energy.
What happened during this? What did they do? These autotrophic components, what did they do? They trap the radiant energy of the sun during the process of photosynthesis, and then they convert this radiant energy, जो आफ्ताब की एनर्जी होती है, इसको वो तब्दील कर लेते हैं into the chemical energy. They are also called as producers, and these may be herbs, these may be shrubs, these may be large sized trees which are found on the terrestrial ecosystem, or they may be microscopic free floating protozoans which are phytoplanktons rather, or we can say some large sized green plants which are found in the aquatic ecosystem. Now these producers, they have got some importance. फर्स्ट जो इनकी इम्पोर्टेंस है, जो में दे फॉर्म द प्राइमरी बेसिस ऑफ लाइफ. दूसरी बात जो हम इनकी बात कर लेंगे, व्हाट इज इट, दे प्रोवाइड फूड. तीसरी बात अगर हम करेंगे, दे प्रोवाइड शेल्टर. दे प्रोवाइड शेल्टर. चौथी बात अगर हम बात कर लेंगे, दे मेंटेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर. दूसरी बात, अब heterotrophic component. Heterotrophic component, these are those which are not in a position to prepare their own food. What did they do? They consume the organic food, they consume the ready-made organic food, or they consume the ready-made organic food. Yeah, what did they do? They decompose the complex organic compounds. हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स, व्हाट आर दे आर दोज, इसमें वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे are not in a position to prepare their own food, but what did they do? They consume the ready-made organic food, or they decompose the complex organic compounds. They are also called as consumers. They are also called as consumers. They do not have chlorophyll, so they are not in a position to synthesize their own food. Depending upon their size, heterotrophs are divided into 4 categories. First one, जो हम बात कर लेंगे, इन 2 टाइप्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स. एक हम बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स. माइक्रो कंज्यूमर्स की अगर हम बात कर लेंगे, इनको हम नाम दे सकते हैं डिकम्पोजर्स. इनको हम बात कर लेंगे सेप्रोट्रॉप्स भी इनको हम बोल सकते हैं. दे मे बी ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसर्स भी हम इनको कह सकते हैं. नाउ दीज ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड. These break down the organic compounds of they break down the complex organic compounds of dead plants and animals. They break down the what we call it, किसको break down करते हैं, complex organic compounds of dead plants and animals. They absorb some of these decomposed products while release most of the inorganic compounds into the environment, from where they are reused by the producers. कुछ समझ में नहीं आया. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर लेते हैं, दे ब्रोक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. They absorb some of these organic compounds
and they release most of these decomposed compound, and they release most of the what we call as the inorganic compounds into the environment, from where they are being recycled, they are being reused by the producers. So what did they do? They help in material cycling. They secrete digestive enzymes to digest the organic compounds externally. They secrete digestive enzyme, उनके जिस्म से कुछ digestive enzymes रिलीज हो जाते हैं, and then these enzymes उनका काम क्या होता है? That they digest the organic compounds externally. इसमें ज़्यादातर हमारे पास नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे बैक्टीरिया आते हैं, जैसे फंगई आते हैं. सेकंड वाला जो हमारे पास है, दीज आर कॉल्ड एज मैक्रो कंज्यूमर्स. मैक्रो कंज्यूमर्स में प्लांट्स आते, एनिमल्स आते हैं. ये वो एनिमल्स होते हैं विच ईट और विच इंजेस्ट द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इसमें मैक्रो कंज्यूमर्स में हमारे पास कौन आते हैं? इट इंक्लूड्स द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स directly or indirectly, which eat or ingest the producer directly or indirectly, and these are also called as phagotrophs. ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फूड, कि फूड कैसा है, इनको हम मुख्तलिफ अक़साम में, इनको हम दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. फर्स्ट जो हमारे पास आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं विच इंक्लूड हर्बीवोर्स विच डायरेक्टली ईट अपॉन द प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स. These are also called as, इसमें कौन से आते हैं? herbivores भी आते हैं which directly eat upon plant or plant products. For example, we have got rabbit, for example we have got deer, etc. ये टेरिशियल इकोसिस्टम की बात है. अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर लेंगे, we have got some crustaceans, we have got some protozoans, etc. प्रोटोजोन्स हमारे पास है जिनकी हम बात कर सकते हैं, एंड दीज आर फाउंड इन द व्हाट वी कॉल्ड एज द एक्वेटिक. दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. सेकंड जो हमारे पास इसी जुमरे में आता है, दीज आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर. They include the primary carnivores. और what did they do? They eat upon the, वो किनको खाते हैं? herbivores, जो herbivores को खा लेते हैं. जिसमें हम क्या क्या देखते हैं? फॉक्स हमारे पास है, फ्रॉग हमारे पास है, एट्सेट्रा. थर्ड हमारे पास आता है टेरिशरी कंज्यूमर्स. टेरिशरी कंज्यूमर्स वो वाले कंज्यूमर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर. इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर, जिसमें हम ज़्यादातर किसको बोलते हैं? what we call as the secondary carnivores में आते हैं, which feed upon the secondary, जो secondary consumers को खा लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल फोकुस जो होता है, इसको कौन खा लेता है? वुल्फ. वुल्फ जो होता है, वुल्फ ईट्स अपॉन द फॉक्स. थर्ड जो हमारे, अब हमारे पास व्हाट वी कॉल एज द थर्ड हमारे पास है टेरिशरी. टेरिशरी को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर. दे आर आल्सो कॉल्ड एज द सेकेंडरी कार्निवोर्स विच ईट अपॉन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. फोर्थ हमारे पास आता है quaternary consumers. These are the consumers of the fourth order.
इसमें ज़्यादातर टॉप कार्निवोर्स आते हैं, वो कार्निवोर जिनको कोई खा नहीं सकता है, विच आर नॉट बीइंग ईटन अप बाय द अदर एनिमल। इसमें हम क्या कहते हैं, दीज ईट अपॉन द टेरिशरी कंज्यूमर्स एज वेल एज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो टेरिशरी कंज्यूमर्स को भी खा सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खा सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में भी खा सकते। इसमें हम एग्जांपल हम क्या देखते हैं, लॉयन की हम एग्जांपल देंगे या टाइगर की हम एग्जांपल दे सकते हैं। नाउ दीज प्रोड्यूसर्स एंड दीज फैगोट्रॉप्स की अगर हम बात कर लेंगे, फैगोट्रॉप्स की हम बात कर लेंगे या सेप्रोट्रॉप्स की अगर हम बात कर लेंगे, द प्रोड्यूसर्स, द सेप्रोट्रॉप्स, द फैगोट्रॉप्स are the biotic component of the ecosystem, and these are considered as the three functional kingdoms of the nature. These are considered as the three functional kingdom, that is this autotrophs. अब ऑटोट्रॉप्स की, ऑटोट्रॉप्स सेकंड वन अगर हम बात लेंगे सेप्रोट्रॉप्स, थर्ड हम बात कर लेंगे फैगोट्रॉप्स की बात कर लेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड फैगोट्रॉप्स। दीज आर कंसिडर्ड एज द थ्री फंक्शनल किंगडम्स ऑफ नेचर, and these are the biotic components of our environment. That is all for today. Tomorrow we will try to discuss the what we call as the abiotic components of our ecosystem. Until then, goodbye. God bless you. Thanks.